अस्सलामुअलैकुम जमाल भाई। वालेकुम सलाम हारून, हाउ आर यू? ऑल गुड जमाल भाई। ऑल गुड। मैं सिर्फ अभी फिलहाल सिलेक्टिवली लोगों को एडमिट कर रहा हूँ सो दैट जो हमारे मेन है वो एंटर हो जाए, देन आई विल आई हम्म। अदर हाँ, पीपल। रेडी हैं अपने मेन लोग तो। वो या आधा घंटा पहले ही आ गए थे। वो आधा घंटा पहले ही आ गए। या लेट मी। एक सेकंड। और कौन था हमारा? रेहान। रेहान नजर नहीं आ रहा। रेहान रेहान। अच्छा, ये है रेहान। अली है। फाहद। ये परफेक्ट। ऑसम। यस। वाओ, अमेजिंग। What a good turnaround. Assalamu alaikum everyone. I वालेकुम। hope everyone is doing amazing. वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। Perfect. Awesome. वालेकुम अस्सलाम। Good to see you all अस्सलाम after a अस्सलाम very वालेकुम long जमाल while. सर, कैसे हैं आप? Alhamdulillah, all good. दानिश हियर। All good, all good. Let me just unmute. अभी फिलहाल मैं हर किसी को अनम्यूट करने की परमिशन नहीं दे रहा, मगर लेट मी रिकॉर्ड, रिक्वेस्ट टू रिकॉर्ड भी नहीं दे रहा, कोलैबोरेट भी नहीं दे रहा। शेयर डॉक्स, स्टार्ट वीडियो, शेयर डॉक्स। All right, all right. It would be a great benefit to me, particularly, if you guys can switch on your cameras, if possible. That will make me realize कि मैं असल बंदों के साथ बात कर रहा हूँ instead of just talking to screens. But yeah, this is amazing. Good, good. और मैंने एक दिन पहले ही जानबूझ के किया था ताकि वो लोग आए जो कि सुपर सीरियस हों, वरना तो हफ्ते पहले हर लोग कमिट कर देता है and nobody shows up. Good to see you. Some very recognized faces. Ehtasham, Adil. These are all recognized faces जिनके साथ काफी लंबी सलाम दुआ है। Alhamdulillah. Perfect. So let's start off. And I will start off by asking a question and you guys can answer by, show of hands. How many of you have actually made your goals for 2025? Ali, Danish, Sana, Umar, Amas, Abdul Wahab. Good, good. और किसके क्या goals हैं? Like if anyone can help me understand. If you can just, type in the chat as to what exactly your goals are, that will just give me half hand. चलें, I hope इसके बाद आपका full hand खड़ा हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही? नहीं, मेरे ख्याल से सबको आवाज आ रही है। आपके एंड पे इशू होगा, काशिफ। Get at least 5 high ticket clients in 1 month. Uh, Goal is to earn $10,000 per month to start earning online. Okay. Financial freedom. How would you define financial freedom at the sum? Business goals, expansion, financial goals, personal goals, content creation, clear ML2 of CMA plus internship, scale my agency to $50,000. Perfect. Good. Become a successful millionaire. कौन सा, पाकिस्तानी पीकेआर में या फिर यूएसडी में? पीकेआर वाले मिलियनेयर्स तो यहीं पे इस रूम में ही 50-60 होंगे इन यूरोस। अच्छा, गुड।
Planning to start my agency in tech, WordPress, build my company tech and scale it to $20,000 per month USD. Perfect. Awesome. Awesome. That's good. That's good. Acha, a couple of house rules. Just yeah, just so you know, just raise your hands. You guys can now, stop raising your hands. Whenever if you have a question, just raise your hands and I can unmute you. और फिर हम उसी हिसाब से लेके चलेंगे. You will get access to the recording और जो templates वगैरह मैं share करूँगा in the next 48 hours inshallah. And we'll take it from there. For some odd reason, I'm really perplexed by Majid Ali की screen. Majid Ali की वीडियो में मैं खुद नजर आ रहा हूँ. I'm not too sure how exactly you're doing this. मगर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो बस ये देख लेना यार, ऑनलाइन मेरी स्ट्रीमिंग कहीं पे ऐसी वैसी वेबसाइट पे ना लगा देना. उसके अलावा बाकी सब ठीक है. अच्छा, चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द प्रॉब्लम विथ, in fact I would say that the problem with not setting your goals, that is very important. Most of the people that I see and I talk to, and by most of the people I mean agency owners and freelancers and all that stuff, you guys, most of them are just winging it, right? कि बस ये मेरा प्लान है $10,000 पर मंथ और बस वो मेरा गोल अचीव हो जाएगा और मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा. मगर when I dissect as to what exactly needs to be done on a daily basis or on a monthly basis, most of the people are clueless. कि वो $10,000 का गोल जहन में रखा हुआ है, मगर what needs to be done tomorrow, in the next week, in the next month or in the next quarter, वो चीज किसी को नहीं पता. एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप दिसंबर में रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, यू जस्ट आर कंफ्यूज कि यार वो गोल मेरा अचीव ही नहीं हो सका या फिर वो गोल अकॉम्प्लिश नहीं हो सका, राइट? सिमिलरली दूसरे एंड पे क्या होता है कि आपने गोल सेट कर लिया और आपने कहा कि यार मैंने $10,000 पर मंथ कमाना है और उसके लिए मैंने ये 3-4 स्टेप्स करने हैं. मगर देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी. जनवरी में आप बड़े एक्साइटेड होंगे एंड यू वुड बी मोटिवेटेड, यू वुड बी टेकिंग एक्शंस एंड ऑल दैट स्टफ. फरवरी में थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी और मार्च के एंड पे आप कहेंगे कि यार चलो नेक्स्ट नेक्स्ट साल देखूंगा, या फिर इट्स नॉट फॉर मी, या फिर मैं नहीं कर सकता, या फिर ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता. 1,000 रीजंस, बिकॉज देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, राइट? सिमिलरली इशू ये भी होता है वो कि वंस यू सेट योर गोल्स और आपने एक बिगर गोल एक सेट कर लिया और डे टू डे ग्राइंड में और डे टू डे के ऑपरेशंस में एज अ फ्रीलांसर या फिर एजेंसी ओनर, यू गाइस वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कभी टीम ने टाइम ऑक्यूपाई कर लिया, कभी यहाँ से क्लाइंट का इशू आ गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया. तो अल्टीमेटली आपका दिन इतनी चीज़ों पे ऑक्यूपाई हो जाता है कि यू have absolutely no control over your calendar, right? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मैं देखता हूँ लोगों में, एंड दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू realize and actualize their goals. In 2024 and in 2025, how I started to make my goals was to go with a very broad vision. Okay, what exactly my vision is, how and where exactly I want to see myself in the next 5 to 10 years. और वो जो आपके गोल्स बनेंगे और वो बेसिकली कुछ चीज़ें उसमें पर्सनल हैं, सो दैट इज व्हाई आई वोंट बी शेयरिंग द फुल फ्लेज वर्जन ऑफ इट, मगर इट इज समथिंग दैट आई हैव रिटन इट डाउन. सो द रूल नंबर 1 इज कि ऑलवेज स्टार्ट वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ, राइट? अब किसी ने अगर मिलियनेयर कहा अपने आप को, तो व्हाट एग्जैक्टली, हाउ वुड यू डिफाइन अ मिलियनेयर? A millionaire is someone who is making $1 million a year, or is someone who has $1 million in assets. Like, who exactly is a millionaire, right? So आपने सबसे पहले define करना है. And once you are able to define it, then you have to write your goals and your aspirations into in a present tense. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये थोड़ी सी फिलोसफिकल और एसोटेरिक सी बात होगी, मगर देयर इज अ वेरी it's very powerful when you say your things in a present tense. और वो किस तरह होगा वो मैं आपको बताता हूँ. मगर 4 कैटेगरीज में आप अपनी लाइफ को डिफाइन करेंगे. द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू डिफाइन द आइडेंटिटी, राइट?
अब आइडेंटिटी डिफाइन करना कि मेरे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और मैं किस तरीके का बंदा होऊंगा या फिर बंदी होंगी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं अपने विजन को 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। द फर्स्ट वन इज बिजनेस इनकम एंड फाइनेंशियल पोजिशन। दैट शुड बी द फर्स्ट part of your vision. I hope you guys are writing it down. Number 2 is lifestyle, home, and environment. Number 3 is, one second, life purpose and personal qualities. Life purpose and personal qualities. And number 4 is health, physical, and emotional well-being. इन 4 चीजों पे आप अपना एक विजन सेट करेंगे। And when you're setting up your vision and when you're setting up your identity, it needs to be in a present tense. इस तरह नहीं कि I will be making या फिर I want to make $10,000 per month. It needs to be, number one, very far-sighted and needs to be big enough to make you excited and big enough to actually scare you off as well. For example, my first vision statement on my business income and financial position is, and I write it down in present tense, I'm making at least $10 million per month in cash flow and enjoying a life of fulfillment and blessing. Number 2, my business is producing healthy amount of leads. The operations are running smooth. I have a leadership structure and they are managing the operations and daily goals and objectives, so on and so forth. ये 4 कैटेगरीज में मैंने अपने गोल्स और अपने विजन्स को फ्यूचर पेस करके, थिंक अबाउट नेक्स्ट 5 years, थिंक अबाउट नेक्स्ट 10 years। जिसने $10,000 पर मंथ का कहा है, थिंक अबाउट मेकिंग $100,000 पर मंथ या फिर $1 million per month, whatever it is। At the same time, it needs to be realistic as well, not to undermine any service। मगर अगर आप एक VA हैं, अगर आप सिर्फ $5 पर आवर चार्ज कर रहे हैं, एंड इफ यू हैव दिस विजन दैट इन द नेक्स्ट 5 years आई वांट टू मेक $10 million, तो वो एक प्रैक्टिकल चीज भी नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी डाल के मैं इसे 1 billion भी कर सकता था, मगर गिवन द बिजनेस मॉडल दैट वी हैव, I am fairly confident that I will be making, in fact, I would say I am making at least $10 million in monthly cash flows. Fairly easy, because मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ वहां पे we are raising millions of dollars और वहां पे कुछ कट हमारा होता है। So the first rule is कि think about the 5 to 10 years vision, break it down into 4 categories, and write under each category in present terms. अब वो आपकी आइडेंटिटी बन गई है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो पर्सनल उसमें है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लाइफस्टाइल, होम एंड एनवायरनमेंट में उसमें ये भी है कि आई प्रे 5 times a day, और मैं ज़कात इतनी दे रहा हूँ, और मैं क्या कहते हैं सदका इतना दे रहा हूँ। सो इट नीड्स टू बी वेरी, एक वन डायमेंशनल नहीं होना चाहिए। इट नीड्स टू बी मल्टी डायमेंशनल, सो दैट यू डिफाइन योर आइडेंटिटी। यू सी योर सेल्फ कि यार एक बंदा जो कि 5 वक्त का नमाजी होगा, what are the daily attributes, what are the daily characteristics of that particular person? Similarly, a person who manages a team of 100 team members, what are the daily characters and daily attributes of that particular person? And उस चीज को घोल के पी लें। उस चीज को ऐसा करें कि यार ये बस ये मेरी आइडेंटिटी है, दिस इज हु आई एम। This is very important. If you don't identify yourself with someone who is achieving your goals, तो आपके जहन में वो डिस्कनेक्ट रहेगा। I would be sharing a couple of videos, आपको विद इन नेक्स्ट 48 hours मिल जाएंगी। इट्स बेसिकली, ये कोई मेरी मेथडोलॉजी नहीं है, ये डैन पीना एक बंदा है, उसकी मेथडोलॉजी। एंड देन अगेन इट हैज बीन प्रूवन बाय नंबर ऑफ काउंटलेस ऑफ अदर पीपल के वी एक्चुअली वर्क इन रेजोनेंस। जो आपका दिमाग होता है, आपका जो माइंड होता है, वो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और सबकॉन्शियस लेवल आपको, आप आपकी एक्चुअल सिचुएशन और जो सिचुएशन आप उसे बता रहे हो, उस चीज में वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू से थिंग्स इन
प्रेजेंट टेंस। अगर आप ये कहेंगे मैं ये करूंगी कि काश मैं ये कर लूं या फिर मेरी ये विश है, योर सबकॉन्शियस माइंड actually starts to think that you are way far away from that particular goal. So you have to convince your subconscious mind that this is actually possible. अच्छा, अब ये नहीं कि आपने एक दफा लिख के और नोटपैड पे लिख के और नोटपैड डस्ट कलेक्ट कर रहा है। आइडियली आप उसे हर रोज देखें, एटलीस्ट वट एवर यू हैव रिटन, सुबह और ये डॉक्टर वाली मैं बातें कह रहा हूँ सुबह और रात को, मगर दिस दिस इज समथिंग दैट वर्क्स, राइट? द बेस्ट पॉसिबल थिंग इज दैट आई हैव एक्चुअली रिकॉर्डेड माई सेल्फ। मैं वॉइस नोट पे रिकॉर्ड अपने आप को करके, और सुबह व्हेन आई एम जस्ट गोइंग आउट फॉर जिम या फिर रात को सोने से पहले मैं हेडफोन लगा के, वो तकरीबन 2 से 3 मिनट की रिकॉर्डिंग, आई जस्ट गो थ्रू द रिकॉर्डिंग एंड जस्ट आई एम इंटरनलाइजिंग ऑल दीज थिंग्स विद इन मी, कि आई एम देयर एंड आई एम अचीविंग दीज थिंग्स, राइट? अच्छा, अब ये तो हो गया बड़ी क्या कहते हैं, फिलोसफिकल सी बातें, राइट? कुछ लोगों को रेजोनेट करेंगी, कुछ लोगों को नहीं रेजोनेट करेंगी, मगर now how do we break this down into something that is tangible, into something that is achievable, right? If my 5 year goal target is to make at least $10 million in monthly cash flows, or 10 year target is to make at least $10 million in monthly cash flows, what needs to be done today? Sorry, what is the target in the next 3 years, in the next 2 years, and in this particular year, right? तो ये चीज आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देन यू ब्रेक इट डाउन इनटू 3 years, 2 years एंड 1 year। 3 और 2 years को मैं अभी, आपने अपना एक रोड मैप बना लेना है कि यार अगर 5 सालों में मैंने $100,000 पर मंथ पे जाना है, तो 4 साल के अराउंड में $80,000 पर होऊंगा, 3 साल के अराउंड में 70 पर होऊंगा, 2 साल के अराउंड में 50 पर होऊंगा, और इस साल माई टारगेट इज कि आई वुड बी हिटिंग क्लोज टू अराउंड $20,000, राइट? सो नाउ यू हैव रिवर्स इंजीनियर्ड, ठीक है? अब जब रिवर्स इंजीनियर किया, एंड आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द ईयर 2025, देन व्हाट नीड्स टू बी डन, एंड लेट मी शो इट टू यू। सो दिस इज हाउ आई प्लान माई ईयर। अच्छा, अब ये जो सेशन है और ये जो प्लानिंग है, दैट इज more tailored towards freelancers या फिर एजेंसी ओनर्स या फिर बिजनेस या फिर कंसल्टेंट्स वगैरह। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, यू वुड हैव अ हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग कि यार ये क्या चीज़ें हो रही हैं, मगर स्टिल यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली यू कैन डू और मेक दैट हैपन। अच्छा, सबसे पहले मेरे कुछ गोल्स होंगे जो कि मैंने यहाँ पे एक्शन आइटम्स की सूरत में रखे हुए होंगे। फॉर सर्टेन ऑब्वियस रीजंस मैंने कुछ चीज़ें डिलीट कर दी हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल थी, मगर दैट इज हाउ यू नीड टू डू। द फर्स्ट थिंग इज कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरा अगर गोल है लेट्स से यू नो $2 million इन दिस ईयर, राइट? और $2 million इन ग्रॉस रेवेन्यू दिस ईयर। अब ये मेरे पूरे साल का एक टारगेट बन चुका है, राइट? एंड आई एम गोइंग टू शो यू हाउ डू यू रिवर्स इंजीनियर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब पहले साल का मेरा टारगेट है $2 million इन ग्रॉस रेवेन्यू दिस ईयर, राइट? अब इस गोल को मैं ब्रेक डाउन करूंगा यहां पे। सबसे पहले आई विल गो थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मगर मैं आपको एक गोल ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि किस तरह जरूरी है। सबसे पहले आई नीड टू अंडरस्टैंड कि इन ऑर्डर टू मेक $10,000, सॉरी $2 million, या फिर चले मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, $100,000 इन दिस ईयर। सबसे पहले मैंने फिर ये अंडरस्टैंड करना है कि इस गोल को अचीव करने के लिए व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नीड टू डू, राइट? अब अगर ये गोल मेरा हाइपोथेटिकली आ रहा है और मैं रेवेन्यू अर्न करता हूँ 2 से 3 चैनल्स पे, लेट्स से मेरा चैनल है एक ईमेल मार्केटिंग, दूसरा चैनल है मेरा फाइवर, दूसरा तीसरा है फेसबुक एड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? वॉट एवर द चैनल्स आर,
if I want to make, let's say, $100,000 in a single year, then I need to see कि यार मुझे मार्केटिंग में रेवेन्यू आपका किस तरह जनरेट होता है। आप क्लाइंट से बात करते हो, राइट? क्लाइंट आपसे किस तरह बात करने का आता है, आप कुछ मार्केटिंग करते हो, या तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हो, या फिर आप आउटरीच कर रहे हो, या फिर आपको इनबाउंड्स आ रहे हैं, राइट? तभी तो क्लाइंट आता है। अब मैंने ये डिटरमिन करना है कि मुझे इस रेवेन्यू को हिट करने के लिए कौन से चैनल्स यूज करने हैं। अब मैं इस रेवेन्यू को, लेट्स से ये मेरा टोटल है, और मैं कहता हूं कि यार मैंने जो फेसबुक एड्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करना है ना, वो लेट्स से वो $50,000 है। और जो मैंने लेट्स से अपवर्क के थ्रू करना है, वो मैंने $20,000 चार्ज करना है, जनरेट करना है। और लिंक्डइन के जो थ्रू करना है, वो मैंने 30,000 करना है, राइट? नाउ आई वुड बी ब्रेकिंग दिस पर्टिकुलर डाउन इन टू द चैनल्स थ्रू विच आई एम गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू, जिस तरह मैंने यहां पे किया हुआ है कि आई वॉन्ट टू generate whatever that revenue is through paid ads, email marketing, और थ्रू इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस जो कि हम लीप वगैरह और सऊदी वगैरह में जा रहे हैं, राइट? अब आपने फिर पूरा रिवर्स इंजीनियर करना है वेन एवर यू आर रनिंग फेसबुक एड्स। जो यहाँ पे फेसबुक एड्स रन करते हैं, जैसे एहतशाम है, ही वुड अंडरस्टैंड कि आपके कुछ केपीआईज होते हैं, राइट? आप पहले एड बजट अपना सेट करते हो, फिर आप देखते हो कि यार मेरी कॉस्ट पर कॉल कितनी आ रही है ऑन एवरेज, आपका क्लोजिंग रेशो कितना आ रहा है, और उस हिसाब से आप देखते हो कि आपके क्लाइंट्स कितने आ रहे हैं और आपका वो कितना बन रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि यार मेरा मंथली रेवेन्यू जनवरी टू मार्च में एटलीस्ट $100,000 का होगा। एंड आई वुड बी शेयरिंग दिस पर्टिकुलर शीट, सो नथिंग टू वरी अबाउट। मगर ये जो फॉर्मूले वगैरह हैं, अगर अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग या फिर बेसिक एक्सेल आता है तो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। अब मैंने कहा यार मेरा टारगेट है $100,000 पर मंथ का, मेरी एवरेज टिकट प्राइस है $20,000। मैं एक क्लाइंट को $20,000 चार्ज करता हूँ ऑन एवरेज, राइट? इसलिए मैंने कहा कि आपकी सर्विस के अकॉर्डिंगली आपके गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। अब मैं अगर लेट्स से $50 चार्ज करता हूँ, तो मेरे अंदाजे के हिसाब से अगर मैंने $100,000 में रेवेन्यू जनरेट करना है, जो मेरे ऐड के केपीआईज हैं, मुझे तकरीबन $4 मिलियन का तो ऐड बजट सेट करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल, राइट? तो आपने इस हिसाब से देखना है कि यार मेरा गोल क्या है और मेरी सर्विस क्या है, और फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ इस साल मेरा क्या कर सकता हूँ। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक करंट स्किल सेट को लेके या फिर एक करंट इनकम लेवल को लेके हाउ डू यू एलिवेट दैट, वो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक्सेल ने कहा कि भाई अगर $1 लाख कमाना चाह रहे हो, 20,000 एक एवरेज से चार्ज करते हो, तो 5 क्लाइंट्स तो मिलाने पड़ेंगे। हमारा एवरेज क्लोजिंग रेशो क्लोज टू अराउंड 15% होता है, जिसका मतलब है कि जो सेकंड कॉल होगी, जो डेमो कॉल जिसे आप टेक्निकल लफ्जों में कहते हो, या फिर आप जैसे कहते हो कि ऑन बोर्डिंग कॉल, या फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो अगर मैं 33 बंदों से बात करूंगा, तब जाके अगर 15% को भी क्लोज करूं तो 5 क्लाइंट्स आ जाएंगे, राइट? अब एक और परसेंटेज जो होती है वो ये होती है कि यार पहली कॉल और दूसरी कॉल में कितने लोग, अगर 100 बंदे पहले कॉल बुक कर रहे हैं, तो उसमें से कितना परसेंटेज सेकंड कॉल पर आ रहे हैं। वो परसेंटेज लेट्स से 50% है, तो इसका मतलब मुझे 67 लोगों को कॉल पे लाना पड़ेगा। अब मेरा शो अप रेट होता है 70, यानी अगर 10 लोग बुक करते हैं तो 7 लोग कॉल पर आते हैं, 3 लोग शो अप नहीं करते, राइट? अब उस हिसाब से, और वी आर टारगेटिंग नॉर्थ अमेरिका और जीसीसी मार्केट, उस हिसाब से मुझे क्लोज टू अराउंड 95 कॉल्स अपने कैलेंडर पे बुक करनी है। अब एक कॉल जो मेरा एड बजट है, यानी बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल्स, एक कॉल मुझे $150 की पड़ती है नॉर्थ अमेरिका में, और $50 की पड़ती है आपके जीसीसी मीना में। उसके हिसाब से मुझे इतना एड बजट सेट करना पड़ेगा फॉर नॉर्थ अमेरिका तकरीबन 8,500, और जीसीसी मीना के लिए तकरीबन $2,000। तब जाके मैं ये केपीआईज अपने हिट करूंगा, राइट? अगर मगर इफ माई बजट इज, अब फॉर एग्जांपल जनवरी के मंथ में मेरा बजट $10,000 नहीं है। मेरा जनवरी के बजट में ये एनेक्डोट, एक सेकंड यार, ये मैं राइट साहब से ले लूं, ये स्क्रीन मार्किंग के पता नहीं,
ये जो भी है ना करना यार ये दोबारा। अच्छा, अब उस हिसाब से अगर मुझे मुझे फॉर श्योर पता है कि अभी मैंने $5,000 का बजट अपना सेट किया हुआ है, तो आई वोंट बी हिटिंग दीज नंबर्स अनटिल लेस मेरी कॉस्ट कम हो जाए और अनटिल लेस मेरा क्लोजिंग रेशो लेट्स से 50% पे चला जाए, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो मैं चीज़ हिट नहीं करूंगा। तो अब मेरा जो एड बजट है वो क्लोज टू अराउंड $10,000 का है। और अगर मैं $5,000 पर हूँ तो आई कैन ओनली एस्टिमेट या फिर एक्सपेक्ट $50,000 इन मंथली रेवेन्यूज। तो ये चीज आपने अपने क्वार्टरली हिसाब से लेकर चलनी है। ये फेसबुक एड्स का मैंने बनाया हुआ है, इसी तरह ईमेल मार्केटिंग का मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है, मगर आपको खुद अपने केपीआईज रिवर्स इंजीनियर करने पड़ेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं लिंक्डइन का बनाता हूँ, राइट। अब लिंक्डइन में लेट्स से मेरी एवरेज जो टिकट प्राइस है वो मैं कहता हूँ हाइपोथेटिकली $1,000, राइट। तो मुझे टोटल क्लाइंट्स कितने चाहिए होंगे? अगर लिंक्डइन से मैंने 30,000 कमाना है, ऑलमोस्ट 30 क्लाइंट्स, राइट। और पर मंथ मुझे कितने क्लाइंट्स चाहिए होंगे अगर मैं इस 30 को डिवाइड बाय 12 करूं? क्लोज टू अराउंड 3 क्लाइंट्स पे मैं राउंड ऑफ कर लेता हूं। अब मेरा क्लोजिंग रेशो कितना है? मैं कहता हूँ कि यार मैं 20% लोगों को क्लोज कर लेता हूँ। दिस इज माई पेट पीव। ये जो भी मेरे पास स्टूडेंट्स या फिर वो कोचिंग प्रोग्राम के हैं, यू वुड दिस गाइज वुड अंडरस्टैंड कि मैं हमेशा ये चीज़ करवाता हूँ कि जो भी मुझे कहता है कि $1,00,000 मेरा गोल है, मैं उसे कहता हूँ अच्छा ब्रेक डाउन करो, व्हाट नीड्स टू बी डन टुडे। अब लेट्स से मैंने 20% लोगों को मैं क्लोज कर लेता हूँ, पर मंथ मुझे 3 क्लोजिंग करनी है। तो उसका मतलब है सेल्स कॉल्स पे कितनी लाने पड़ेंगे मुझे? 30 डिवाइड बाई 20%, 3 डिवाइड बाई 20%, दैट इज 15 लोगों को मैं महीने पे कॉल पे लेकर आऊंगा, 20% क्लोज करूंगा, 3 क्लोज होंगे, एक बंदा मुझे 10,000 देगा, तब जाके मेरे पास महीने का 3,000 बनेगा। अच्छा, अब हर बंदा तो कॉल पे नहीं आएगा। अब इसके पीछे मुझे फिर से थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियर करेगा। अब मैं कहता हूँ कि कॉल एक्सेप्टेंस रेशो जो है वो मैं कहता हूँ कि यार सिर्फ 10% ऐसे लोग होते हैं जो कि मुझे कहते हैं, जिन्हें मैं मैसेज करता हूँ वो कहते हैं कि हाँ यार कॉल पे आ जाओ, राइट। तो कितने लोगों को मुझे मैसेज करना पड़ेगा? 150 लोगों को, राइट। अब लिंक्डइन का गेम ये है कि आप वैसे रैंडमली तो ऑल्दो कुछ तरीकों से आप कर सकते हैं, मगर सिंपल तरीका तो यही है ना कि जब जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आप उन्हें मैसेज नहीं भेज सकते। दैट इज द रूल, राइट। ये हर किसी को पता है ना लिंक्डइन की गेम का। अब सीन ये है कि जो कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्टेंस रेट होता है वो क्लोज टू अराउंड 20% होता है, कभी कभार 25-15, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी प्रोफाइल किस तरह की है। जिसका मतलब है मुझे कितने कनेक्शंस भेजने पड़ेंगे? 750 कनेक्शंस पर मंथ, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल। क्योंकि आप अगर मैं प्रैक्टिकल है, अगर आप हाँ 30, 20, 25 भेजें तो आप 600, 650, 700 आप हिट कर सकते हैं। मगर अब सीन बताऊं क्या है, प्रॉब्लम बताऊं क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपने ये गोल तो सेट कर लिया, यू नो मगर आप ये काम नहीं कर रहे। आप हर महीने 750 कनेक्शंस नहीं भेज रहे, जिसका मतलब है पर डे आपने ऑलमोस्ट 25 कनेक्शंस भेजनी है। आप ये काम नहीं कर रहे। आपने गोल तो सेट कर लिया, मगर यू गाइज आर नॉट डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे पता चल गया कि यार मैंने लिंक्डइन पे डेली की बेसिस पे 25 कनेक्शंस भेजनी है। अब मैं जनवरी के मंथ पे जाऊंगा और मैं मेन ऑब्जेक्टिव अपना जनवरी का रखूंगा यहाँ पे 750 कनेक्शंस, और यहाँ पे मैं अपना गोल रख लूंगा 25 कनेक्शंस, राइट। इसे मैं डेली के बेसिस पे कर लूँ। और जैसे जैसे मैं गोल अचीव कर लूंगा तो कोई भी आप कलर चूज कर सकते हैं, यू गाइस कैन जस्ट चूज ग्रीन कलर, और वो आपका अचीव हो रहा होगा, राइट। ये इसी तरह मैंने ये सारे अपने गोल्स ब्रेक डाउन किए हैं। मंथ एंड पे जाके आप देखेंगे कि आपके कितने गोल्स ग्रीन में अचीव्ड हैं। अगर आपके ग्रीन में अचीव नहीं हुए हुए तो दैट मीन्स कि अगर आपने जनवरी को हिट नहीं किया तो आप ये गोल भी अपना हिट नहीं कर रहे। समझ आई कि वाई वी आर नॉट एबल टू अचीव द गोल्स?
क्योंकि हमने अपने डेली कैलेंडर को सही तरीके से ब्रेक डाउन नहीं किया हुआ। अब फॉर एग्जाम्पल ये जैसे आप अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आप भी तो लिंक्डइन करते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? ये मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरा सारा लिंक्डइन ऑटोमेशन पर है, तो वो मुझे उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या आप बल्कि यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये मेरे कनेक्शन सारे जा रहे हैं लिंक्डइन पे, तो मुझे वो मैनुअली चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मगर इफ़ यू वांट टू डू दिस मैनुअली, यू गाइस कैन डू दैट एज वेल, राइट? अब इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरा कुछ गोल आपके होंगे ब्रेक डाउन में, जिस तरह ये है, ईमेल मार्केटिंग है, कितने ईमेल्स आपको भेजने पड़ेंगे, क्या क्लोजिंग है। यू गाइस कैन जो ईमेल मार्केटिंग यूज कर रहा है, आई वोंट बी गोइंग इनटू डीप डिटेल्स के व्हाट एग्जैक्टली आर द केपीआईज एंड ऑल दैट स्टफ। मगर आप इसे प्ले अराउंड कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने ईमेल मार्केटिंग से एक्स लेट्स से अगर $50,000 रेवेन्यू जनरेट करना है तो कितनी ईमेल्स भेजनी पड़ेंगी। अब मैं एक बंदे से बात कर रहा था, ही वॉज पार्ट ऑफ माई कोचिंग प्रोग्राम। उसने कहा कि यार मैं ईमेल से, पता नहीं वो आया भी है फिर नहीं आया, मगर ही सेड कि मैंने ईमेल से लेट्स से पता नहीं 5 या फिर $10,000 का रेवेन्यू जनरेट करना है। दैट वाज हिज टारगेट, राइट? अब जब मैंने ब्रेक डाउन करवाया, मैंने कहा यार ये इस तरह का आप ब्रेक डाउन करो। द आंसर वाज दैट ही नीड्स टू सेंड क्लोज टू अराउंड 5 to 7,000 emails per month in order to hit that goal. इन वजह से मैं पिछले 2 सालों से, लिटरली 2 सालों से या फिर 1 डेढ़ साल से, ही वॉज ट्राइंग ईमेल मार्केटिंग एंड इट वॉज नॉट यील्डिंग एनी रिजल्ट्स। कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। आई ब्रोक दिस डाउन। मैंने कहा अच्छा, 20-25 हज़ार अगर कमाने, तुमने तकरीबन 5 से 7 हज़ार ईमेल्स सेंड करनी है, न्यू ईमेल्स। वो कभी कभार आपका ईमेल सॉफ्टवेयर कहेगा कि आपने इतनी ईमेल, मगर उसमें वो फॉलोअप्स भी होते हैं। न्यू ईमेल्स आपने 5 से 7 हज़ार लोगों को भेजनी है। डू यू नो द नंबर दैट ही वाज सेंडिंग? एनी गेसेस? चैट में मुझे बताएं। नहीं, 100 इससे थोड़ा सा बेहतर था। यार वो बंदा तकरीबन 700-800 ईमेल्स भेज रहा था। हाँ, ये 1,000 के आसपास ईमेल्स थी। 1,000 ईमेल्स पे, यू गाइस, अगर आप रिवर्स इंजीनियर करें, ये ना आपको बता देगा। ये इसे इसे बेसिकली आप कहते हो टॉप डाउन एनालिसिस, राइट? कि टॉप डाउन एनालिसिस है कि मैं तकरीबन 18,000 ईमेल भेजूंगा, तब जाके मुझे 50,000 का रेवेन्यू आएगा। अब इसमें मैंने ये एज्यूम नहीं किया, मैं तो ये भी एज्यूम कर रहा हूँ कि 30 डेज के अंदर अंदर सेल्स क्लोज हो जाएगी। जो कि यहाँ पे टेक्निकल फील्ड के उन्हें पता है कि कभी कभार सेल साइकिल आपका 60 दिनों पे चला जाता है। तो इसका मतलब है मुझे तो तकरीबन 20-25 हज़ार भेजनी पड़ेंगी। मगर दिस इज द आइडियल मोस्ट सिचुएशन कि अगर सेल साइकिल आपका 30 डेज का है, तो अगर आप एक महीने में, मैं अगर 18,000 ईमेल भेजूंगा और कॉन्टैक्ट्स को टच बेस करूंगा, तब जाके मेरे पास ये आएगा। हाँ, जो आपका बिजनेस ग्रो करेगा ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे पल्ले से बांध लें। सबसे पहले आपका बिजनेस ग्रो करेगा जब आप नंबर्स को इंक्रीज करेंगे। 1,000 लोगों को रीच आउट कर रहे थे, अब आप 5,000 लोगों को रीच आउट कर रहे हैं। आपका क्लोजिंग रेशियो वही है, 10%, राइट? अब कैप आ गया 5,000 लोगों पे। अब 5,000 से ज्यादा आप रीच आउट ही नहीं कर सकते। फिर आप बात करेंगे अपने स्किल पे, आप इंप्रूव करेंगे अपने स्किल्स को। अब मैं किस तरह इंप्रूव करूंगा कि यार मैं अपने क्लोजर से कहूंगा कि यार इसे 15% पे ले जाओ। अब लेट्स से मैं अपना क्लोजर मेरा इंप्रूव कर लेता है अपना क्लोजिंग का गेम, तो with 20%, instead of sending 18,000 emails, I just need to send 9,000 emails, राइट? इसी तरह मैंने अपना क्लोजिंग और बेहतर कर लिया, तो अब मुझे सिर्फ 6,000 ईमेल्स भेजनी है। तो सबसे पहले आप नंबर्स पे फोकस करें, राइट? और उसके बाद आप फिर केपीआईज पे फोकस करें, और हाउ टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ दोज केपीआईज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एक सीढ़ी आपकी चलेगी नंबर्स पे, स्टेबल हो जाएगा। फिर आपके आएगी केपीआईज पे। से अगर मैं विजुअली ड्रॉ करूं, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, कि सबसे पहले आपने, ये आप यहां पर हैं, राइट? लेट्स से अगर आप अभी $10 पर हैं, अब आपने नंबर्स पे इंक्रीज किया, आपने 5,000 लोगों को रीच आउट करना शुरू कर दिया। अब आप आ गए लेट्स से $1,000 पे। अब आप स्टेबल हो गए।
फिर आप कहेंगे कि यार अब मैं अपने सेल्स स्किल्स को इम्प्रूव करता हूँ, कॉपी राइटिंग को इम्प्रूव करता हूँ एंड ऑल दैट स्टफ। अब आप आ गए लेट्स से $6,000 पे। फिर जब आप 20% पे परफॉर्म कर रहे होंगे या फिर 5 to 10% पे लेकर चले गए अपनी चीज़ों को, फिर से आप अपने नंबर्स को ऐड कर दें। अब आप 10,000 लोगों को रीच है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली पहले आप नंबर्स पे काम करते हैं, फिर आप क्वालिटी पे काम करते हैं। तो सो ऑन एंड सो फॉर। अब मुझे लोग ये कहते हैं कि यार क्या कहते हैं, सीन ये है कि मैं तो 20 मुझे अक्सर आता है कि जी मेरा क्लोजिंग रेशो तो 70% है, 80% है। राइट। ठीक है, होगा। किसी जमाने में मेरा भी था लिटरली, जब मैं 400 से $500 की सर्विसेज बेच रहा था और क्लाइंट जहन में बना कर आता है यार ये चीज़ तो 2,000 $5,000 की है। उसे अगर कोई बंदा, एक अच्छा स्किल बंदा आपकी तरह मेरी तरह $400 का बेचे तो वो तो कहेगा हाँ यार 100 बिस्मिल्लाह। राइट। तो आपने इस चीज को भी जहन में रखना है कि जो आप स्किल पे अपने कॉन्फिडेंट हुए हुए हैं, वो स्किल आपका किस लेवल पे आपको आपका साथ दे रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। सिंपल टू से कि आई हैड अ वेरी ग्रेट क्लोजिंग रेशो वेन एवर आई वॉज वर्किंग थ्रू लिंक्डइन, जो पर्सनल ब्रांड के थ्रू आते थे, रेफरल के थ्रू आते थे, या फिर कभी किसी ज़माने में जब लास्ट ईयर में फाइवर यूज़ करा था वहाँ से आ रहे थे। राइट। अब जब मैंने फेसबुक एड्स रन करना शुरू किए तो क्या होने लगा कि क्योंकि कोल्ड ऑडियंस आती थी, कोल्ड ऑडियंस का ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करना और उन्हें इनकरेज करना, उन्हें क्लोज करना, वो गेम ही अलग था। तो फिर से मुझे अपने सेल्स स्किल्स पे ऑप्टिमाइजेशन और उस पर काम करना पड़ा और सीखना पड़ा, फिर से जाना पड़ा, डिफरेंट कोचेस को कंसल्ट करना पड़ा। और अब जाके जब वो चीज़ बेहतर हुई, जब आई स्टार्टेड टू क्लोज, तो आई ब्रॉट इन अ पर्सन क्लोजर बिकॉज आई कैन नॉट टेक सेल्स कॉल्स एवरी सिंगल डे। तो इस तरीके से आप इंप्रूव करते हैं अपने बिजनेस को। राइट। ये मैंने सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि आप किस तरीके से अपने डेली गोल्स को ब्रेक डाउन करेंगे। जनवरी का ऑब्जेक्टिव, मार्च का ऑब्जेक्टिव, सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट। अब आपने हर महीने अपने, मुझसे अक्सर सवाल आया जब मैंने ये शीट शेयर की कि पूरे साल का आपने किस तरह बना लिया। पूरे साल का इसलिए बना कि मैंने पूरे साल को ब्रेक डाउन किया कि यार मुझे मंथली बेसिस पे क्या करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं जाऊंगा कि क्वार्टरली में मेरा जो मेन टारगेट है वो है, लेट्स से अगर 750 थे पर मंथ, तो क्लोज टू अराउंड, लेट्स से अगर मैं 800 कर लेता हूं, तो मुझे 2400 कनेक्शंस ऑन लिंक्डइन भेजने हैं। ये मेरा टारगेट है क्वार्टरली। राइट। इसे मैं यहां पे लिख लूंगा ताकि जब आप डैशबोर्ड पर आएं तो आप अपने क्वार्टर्स को देख सकें। राइट। जब क्वार्टर्स पर आएं तो आप अपने मंथ्स को खोलें, आप अपना रेलेवेंट मंथ देखें। और जब आप मंथ्स पर आएं तो आप अपने डेज को देखें कि यार मैंने इस डे पे क्या करना है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि नोटपैड हर किसी के पास होता है। वेन एवर यू आर सीइंग योर डे, आपने एक सेपरेट कॉलम बनाना है सबसे ऊपर। वो चीज आपके, ये जो गोल्स है ना, वो उस चीज पे आएंगे कि सबसे पहले, वो जिसने अगर वो पढ़ी है ईट द फ्रॉग समथिंग लाइक दैट, उस तरह की एक बुक है प्रोडक्टिविटी पे। दैट बुक सेज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क नीड्स टू बी completed as early and as soon as possible। अगर आप ये काम नहीं करेंगे कि मैं अब जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं आया हुआ हूँ, आज ये मेरी कॉल है अपने उससे, मैंने ये कोर्स देखना है और स्ट्रेटेजाइज ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड गोल रिव्यू, ये काम मेरा टू बी ऑनेस्ट हो चुका है सारा। सबसे पहले मैं अपनी नोट पैड पे इन 3 चीज़ों को लिख लूंगा, ये मैंने करने ही करने हैं। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो इसी तरह के ब्लैंक्स आ जाएंगे और ये जो मेरे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोज वोंट बी हिटिंग आउट। तो ये सबसे पहले आपने करना है। उसके बाद आ गया क्लाइंट की डिलीवरी, उसके बाद आ गया टीम का रिव्यू, उसके बाद आ गया XYZ। मगर अगर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क वो स्केड्यूल नहीं होंगे आपके डेली कैलेंडर में, आपकी डेली डायरी में, तब तक यू वोंट बी एबल टू हिट दोज टारगेट्स। राइट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डैशबोर्ड मैं किस तरह अपना अलाइन करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मैंने कलर कोडिंग की हुई है।
अब जैसे कुछ मेरे टारगेट्स हैं कि मैंने अपॉइंटमेंट सेटर हायर करना है, राइट। अब मेरा अपॉइंटमेंट सेटर ऑलमोस्ट इस डेट्स के आसपास, ये बल्कि लीप का ही है। यहाँ पे उसका मेरे ख्याल से कलर चेंज हो गया जब मैंने चेंज किया है। मगर फॉर एग्जांपल ये इंटरव्यूज फॉर पॉडकास्ट, अब मेरा एक टारगेट है कि यार मैंने एक पॉडकास्ट लॉन्च करनी है, राइट। ये मैंने एक्शन प्लान्स में यहाँ पे लिखा हुआ होगा कहीं पे, अगर डिलीट नहीं किया, पता नहीं। यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं अपना एक्शन आइटम डालूंगा कि मैंने 12 एपिसोड 24 एपिसोड्स पॉडकास्ट की डालनी है अपनी, ठीक है। अब मैंने उस पॉडकास्ट को डिफाइन करना शुरू किया। अब जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट संडे को नहीं हो सका था, लास्ट संडे को आई गॉट बिजी, मगर अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पॉडकास्ट के लिए मैंने करना है। अब मेरा जो टारगेट है पॉडकास्ट का वो ये है कि हर महीने मैंने 2 बंदों को इंटरव्यू करना है पॉडकास्ट पे। जिसका मतलब है कि मैंने हर महीने, सॉरी हर क्वार्टर कितने बंदों को पॉडकास्ट पे लाना है, और यहाँ पे मेरे पॉडकास्ट के इंटरव्यू स्केड्यूल्ड हैं। अब मैं चाहूँगा अगर February 1 पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने अपना पॉडकास्ट का लिखा हुआ है, शूट पॉडकास्ट, शूट पॉडकास्ट, राइट। तो इससे ये होता है कि वेन एवर आई ओपन अप माई मंथली प्लान, आई कैन एग्जैक्टली सी कि यार मुझे इस महीने में मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या मैंने रीच करने, राइट। ये 9 इन्वेस्टर कन्वर्सेशंस, spend $6,000 in ad budget and close 75,000 in revenue, schedule at least 5 investor interviews। ये टू बी ऑनेस्ट पहला तो एक हो ही चुका है, खैर ये मैं बाद में आपको दिखा सकता हूँ। तो पहला हो चुका है। इसी तरह कंप्लीट फाइनेंशियल मॉडलिंग ट्रेनिंग टू द टीम, ये आप देख सकते हैं कि मैंने फाइनेंशियल मॉडल की ट्रेनिंग मैं अपनी टीम को दे रहा हूँ, राइट। इसी तरह सेंड ईमेल कैंपेन्स टू लीप एंड KWS कैंडिडेट्स, ये हम ईमेल आउटरीच कर रहे हैं, राइट। इसी तरह 750 ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया था। तो इस तरीके से आपका पहला एक गोल बनेगा, राइट। अब ये अपॉइंटमेंट सेटर है, लॉन्चिंग, ये पॉडकास्ट वाला आ गया, टारगेट 2 इंटरव्यूज ईच मंथ, टोटल 22 इंटरव्यूज, आइडेंटिफाई टॉक एंड क्लोज 2 एडवाइजर्स ऑन बोर्ड, पार्टनर अप विद XYZ। और आपने फिर अपने आप को डेडलाइंस देनी है, राइट। कुछ आपकी होंगी पूरे साल का वो गोल होगा, और कुछ आपकी होंगी कि आपने स्पेसिफिक मंथ्स में वो चीज़ करनी है। जैसी मैंने ये चीज़ को सेट किया, उसके बाद मैं मंथली जाऊंगा, मैं यहाँ पे उस टारगेट को लिखूंगा कि इस टारगेट में मैंने 2 पॉडकास्ट शूट करनी है। और पॉडकास्ट शूट करने से पहले हमेशा रिवर्स इंजीनियर करें। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखा कि क्या कहते हैं पॉडकास्ट शूट, आई हैड टू रिवर्स इंजीनियर। क्या है, सबसे पहले मैं उसकी थीम सोचूंगा, उसके बाद मैं रीच आउट करूंगा जो अपने मेरे 5 कनेक्शंस हैं, उसके बाद मैं फाइनेंशियल पॉडकास्ट के होस्ट नहीं होगा, यहाँ पे गेस्ट होगा, गेस्ट को फाइनलाइज करूंगा। और फिर फेब में जाकर मैं इस तरह के अपनी पॉडकास्ट लॉन्च करूंगा। इट वुड बी एन सिंपल पॉडकास्ट। तो इस तरीके से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो 3 चीजें मैंने आज आपको पल्ले से अपने बांध लें कि इस गोल की कोई अहमियत नहीं है, 10,000 की, 100,000 की, इट हैज लिटरली नो वैल्यू अनटिल लेस आप उसे ब्रेक डाउन करें। जब आप ब्रेक डाउन कर लें आपको पता चल जाएगा कि यार मेरा डेली मंथली बेसिस पे क्या टारगेट है। 750 अगर मैंने यहाँ पर करना है तो मैं हर महीने पे जाके 750 लिख दूंगा। उसके बाद मैं डैशबोर्ड पर आऊँगा और उस टारगेट को मैं कंसोलिडेट कर लूँगा। अगर एक महीने में 800 भेजने, तो एक क्वार्टर में आपको कितने भेजने, 2400 भेजने। उसके बाद मैं यहाँ पे टारगेट कर लूँगा। तो ये चीज, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट है, जो मेरा स्टेलर का अकाउंट है, वहां पे मेरा टारगेट है कि 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए मेरे, राइट। अब जनवरी का मेरा क्या टारगेट है कि जनवरी के एंड पे 3200 फॉलोअर्स होंगे, फेब के एंड पे तकरीबन 4,000 होंगे, मार्च के एंड पे एटलीस्ट 4,800 होंगे। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और मैंने यहाँ पे Q1 मार्च में ख़त्म हो रहा है, तो मैंने अपना टारगेट दे दिया है कि 4,800 फॉलोअर्स। अब चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, राइट। मगर इससे ये होगा कि आपकी 70 to 80% ऑफ द थिंग्स आर अकाउंटेबल। और अगर आप जैन के एंड पे, व्हाट आई वुड लव टू डू कि आप मुझे इंडिविजुअली पिक्चर लेके भेजें अपने जनवरी के कैलेंडर की, कि मैं देखूं कितने ग्रीन्स हैं उसमें, आई वुड लव टू डू दैट, राइट। यू गाइस हैव माय DMs ओपन, जिसने जिसने ईमेल करनी है वो ईमेल कर ले। दैट वुड बी वन थिंग दैट आई वुड लव टू सी, इन फैक्ट एवरी सिंगल मंथ, राइट। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। जब तक आप अपने आप को अकाउंटेबल नहीं रखेंगे कलर कोडिंग के थ्रू,
एक तो आप कलर कोडिंग कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस पार्टनर है तो आप उससे बताएं कि यार ये मेरा गोल है, तुमने टारगेट मुझे रखना है, राइट। तीसरी चीज जो अकाउंटेबिलिटी की मैंने एक बुक में पढ़ी थी वो ये थी कि अपने आप को पेनलाइज करें कि लेट्स से अगर यहाँ पे 80% से कम ग्रीन है तो मैं अपने पैसों में से हाइपोथेटिकली मैं अपने पैसों में से 20,000 रुपये कोई ऐसी खैरात कर दूंगा, चैरिटी कर दूंगा, राइट। और वो नंबर इस तरह होना चाहिए जिससे आपको पेन भी हो। अब जैसे एहतशाम है 20,000 से, तो वो कुछ भी नहीं होगा एहतशाम को, मगर इस तरह होगा कि 20 लाख मैं चैरिटी कर दूं तो देन ही विल फील सम पेन, राइट। तो इस तरीके से आप अकाउंटेबिलिटी अपनी कर सकते हैं। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि सबसे पहले आप अपने आप को गोल सेट करें, उसके बाद ब्रेक डाउन करें। अब हर गोल का ब्रेक डाउन नहीं होगा, जाहिर सी बात है, मगर जो रेवेन्यू हिटिंग गोल्स हैं आपके, वो आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं और उसे फिर आप मंथली बेसिस पे लेकर जाएं। और उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड्स पे देख लेंगे कौन सी की टाइमलाइंस वगैरह हैं, दिस एंड दैट। अब जैसे मेरा एक टारगेट है कि यार मैंने लोकल टैलेंट केएसए में ढूंढना है और उसे वहाँ पे पोजीशन पे बिठाना है। अब वो मैं 18 से शुरू करूँगा, फाइनलाइज मेरा अगस्त तक है, राइट। अब ये मैंने दो कलर कोडिंग्स डाल दी हैं, इसके बाद वो अगस्त, जून जुलाई अगस्त में वो उसके उसमें भी आ रहा होगा, ये मैंने डिलीट नहीं किया। या ये यहाँ पे मैंने डाला हुआ है कि इंटरव्यूज कब होंगे, कब वो प्लानिंग होगी, दिस एंड दैट। अच्छा, अब ये जो आपकी शीट है ना, इसे आप सुकून से करें, कोई टेंशन नहीं। मुझे मुझे अभी भी तकरीबन 1 से 2 दिन चाहिए इस चीज़ को फर्दर फाइनलाइज करने में। टेक एटलीस्ट लाइक वन वन वीक 2 वीक्स, कोई जल्दी इसमें कोई जल्दी का सीन नहीं है। मगर जब आपने एक चीज़ डिफाइन कर ली, देन यू नीड टू हैव ऑल द नेसेसरी सिस्टम्स, protocols and accountability in order to accomplish that। और वो चीज टाई अप करती है आपकी आइडेंटिटी से। जब आप रोज, अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो वो फिलोसफिकल सी बात है, मगर जब आप रोज अपनी ही आवाज में अपनी ही गोल्स को सुन रहे होंगे इन प्रेजेंट टेंस, तो कभी कभार जब आप मिस करेंगे तो आप खुद शर्मिंदा होंगे। दैट इज द लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी दैट यू गाइस नीड टू हैव इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश द गोल्स एंड इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश द टारगेट्स दैट यू आर सेटिंग। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब एक जो चीज आई वुड जस्ट स्लाइटली सेगवे एंड टॉक अबाउट रेवेन्यू गोल्स इन पर्टिकुलर। अब रेवेन्यू गोल्स अगर आपने लेट्स से हाइपोथेटिकली $5,000 सेट कर दिए, मगर अगर आपका चैनल इज लेट्स से फाइवर, तो यू गाइज आर गोइंग नोवेयर। रीजन बीन कि आपको क्या पता कि यार आज फाइवर से कौन कौन फाइवर पे काम कर रहा है, जरा अपने हैंड रेस कर दें ताकि मुझे आइडिया भी हो जाए। नथिंग रॉन्ग इन इट, राइट, मगर यू गाइस हैव एब्सोल्युटली नो कंट्रोल, एब्सोल्युटली नो कंट्रोल। सिमिलरली अपवर्क में मैं कहूंगा 50% कंट्रोल है कि यू गैस कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ प्रपोजल्स बीन सेंट, मगर कहीं पे लिमिटेशन ये आ जाती है कभी कभार। लोग ये कहते हैं कि यार मैं जो हमारे अपवर्क के भी स्टूडेंट्स थे कि टारगेट हमने 5 प्रपोजल्स पर डे का रखा हुआ है, मगर 4 दिन आ गए कोई क्वालिटी जॉब ही नहीं आई, राइट। तो दैट इज वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू पोजिशन योर सेल्फ एंड गेट आउट ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स एज सुन एज यू कैन। पैसे कमा लिए, सेव करें, उसी सेविंग्स को इन्वेस्ट करें या तो लिंक्डइन आउटरीच पे, या फिर उसी सेविंग्स को इन्वेस्ट करें आपके ईमेल आउटरीच पे। एड्स पे आई वोंट रिकमेंड अनलेस यू गाइस आर मेकिंग एटलीस्ट $10,000 अ मंथ। एड्स के लिए यू गाइस आर टू अर्ली। मगर इफ यू गाइस आर मेकिंग मनी, सेव दैट मनी। नया आईफोन, नया गैजेट्स लेने की, नई गाड़ी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। री इन्वेस्ट दैट मनी and buy that invest in these particular softwares। अब LinkedIn outreach के लिए आई बिलीव द मंथली कॉस्ट वुड बी नेविगेटर की आई बिलीव 99 या फिर $79 अ मंथ है, और कोई भी इस तरह का जिस तरह मैं टूल यूज कर रहा हूँ दैट्स $55, दैट्स $150 अ मंथ। ईमेल आउटरीच पे अगर मैं जाऊँ तो वो भी ऑलमोस्ट, अगर मैं स्मार्ट लीड्स यूज कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो एन एडिशनल लाइक $150 to $200 अ मंथ। तो 200 प्लस चले, लिंक्डइन को भी मैं 200 कर सकता हूँ। $400 पर मंथ पे यू गाइस कैन easily transition out of Fiverr। That is how I did।
राइट। आई एम स्टिल अ प्रो सेलर ऑन फाइवर, राइट। मगर वही फाइवर के जो पैसे आ रहे थे उसे मैंने सिस्टम्स और बाकी चीज़ों पे री इन्वेस्ट किया। एंड अल्टीमेटली अब मैं फाइवर पे इस तरह का, वो आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं। वो जो हर सुबह उठ के गिग्स की एनालिटिक्स देखना, या फिर हर सुबह उठ के फाइवर अपवर्क के जॉब बोर्ड्स को देखना, एटलीस्ट वो वाली टेंशन नहीं है। टेंशन्स हैं, और बड़ी टेंशन्स हो गई हैं टू बी ऑनेस्ट। मगर वो जो घिच पिच होती थी फाइवर पे कि अदर्स आर डूइंग फॉर दिस, या फिर अपवर्क पे कि एवरीवन इज प्राइस शॉपिंग, उस चीज से आप बाहर निकल जाएंगे। एंड यू गाइस कैन ओनली टेक कंट्रोल ऑफ योर गोल्स एंड योर इनकम इफ यू गाइस कंट्रोल योर ओन लीड फ्लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने लीड फ्लो पे अपना कंट्रोल नहीं रखा तो यू गाइस वोंट बी एबल टू अचीव दैट, क्योंकि कोई लीड फ्लो पे कंट्रोल नहीं है। आई वाज मेकिंग गुड मनी फ्रॉम फ्रॉम फाइवर, टू बी ऑनेस्ट, वेरी वेरी गुड मनी। मगर लीड फ्लो पे कोई कंट्रोल नहीं था, टेंशन ही होती थी। मैं हमेशा ये मजाक करता था कि पहली से लेकर 25 तक मूड खराब ही रहता था, क्योंकि रेवेन्यू हिट ही नहीं हो रहा होता था। 20-25 तक रेवेन्यू हिट हो गया, अगले 5 दिन सही सुकून से गुजरे। फिर फेब में वही टेंशन शुरू कि यार अब फिर से फाइवर का एल्गोरिदम कभी ऊपर, हाँ कोई चीज अगर आपने ऊपर नीचे कर दी फिर तो आप भूल ही जाएं। अपवर्क में भी यही प्रॉब्लम है। मगर अगेन दीज प्लेटफॉर्म्स आर गुड इनफ फॉर यू टू गेट स्टार्टेड, मेक मनी, सेव मनी, एंड देन क्रिएट योर ओन सिस्टम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बगैर इट वुड बी वेरी वेरी टफ फॉर यू गाइस टू सेट अप गोल्स डिस्पाइट डूइंग ऑल द थिंग्स। आप गोल्स भी सेटअप कर लेंगे, अकाउंटेबिलिटी भी कर लेंगे। अब फाइवर पे अगर आपने टारगेट रखा हुआ है, मैंने 5 बंदों से डेली की बेसिस पे कॉल्स लानी है, फाइवर पे आपको मैसेज ही नहीं आया तो आप कॉल्स क्या उठाएंगे, या फिर कॉल्स किसके साथ करेंगे? सो दैट इज वाई यू नीड टू कंट्रोल द सोर्स ऑफ द ट्रैफिक, राइट? So, although we went into, yes, I would be sharing this particular template in the next 48 hours along with the recording, और एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। कुछ कुछ टेम्पलेट्स हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, जस्ट इन केस इफ यू गाइस वांट टू टेस्ट विथ email outreach, LinkedIn outreach and all that stuff. Do these things on your own, learn these systems and all that stuff. It's very very important. It literally hurts me. मेरा ही स्टूडेंट था, और बहुत अकॉम्प्लिश स्टूडेंट था। ही वॉज मेकिंग क्लोज टू अराउंड आई बिलीव $20,000-25,000 अपवर्क पे, और ही हैड लाइक 10-12 टीम मेंबर्स भी थे उसके। एंड ऑल ऑफ अ सडन हिज प्रोफाइल गॉट बैंड। ही हैड टू लेट गो ऑफ ऑल ऑफ हिज क्या कहते हैं वो टीम मेंबर्स। 5-6 लोगों को सिर्फ हायर रखा। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि वो जो पैसा आ रहा है उस पैसे को आप सेव तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर उस पैसे को री इन्वेस्ट भी करें। $400-500 पर मंथ पे यू गाइस कैन easily navigate and sustain these operations. The reason, आप अक्सर देखते हैं, अगर मेरी पोजीशन, ऑल्दो अब मेरे कोई कोर्स इस तरह का नहीं है, शायद आगे आने वाले वक्तों में देखूं, या फिर जो कोचिंग प्रोग्राम भी था, द रीज़न वाई आई डोंट पोजिशन इट इन फ्रंट ऑफ कंप्लीट न्यूबीज इज बिकॉज मैं या तो ना फाइवर बता रहा हूँ ना अपवर्क बता रहा हूँ। The things that I'm teaching still require an investment of 200, 300, 400, at least $500 per month। और वो अगर मैं न्यूबी को बताऊं वो कहेगा कि यार ये तो फायदा ही नहीं है। तो आप फाइवर करें, अपवर्क करें, बेशक करें, मगर slowly and gradually save that money and create your own systems। and that is how you know अक्सर औकात आप कहते हो कि मैं क्या कहते हैं, मैंने जॉब क्विट कर दी है, एंड आई यूज्ड टू फील द सेम वे, टू बी ऑनेस्ट। आई क्विट माई जॉब और मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ एंड ऑल दैट स्टफ, बट अल्टीमेटली अगर आप बिगर पिक्चर से देखें तो फाइवर एंड अपवर्क आर योर अल्टीमेट बॉसेस, राइट? अभी भी आपके पास कंप्लीट फ्रीडम नहीं आया। So, yep, think about these things. I will be sharing this particular template. I hope these things were useful for you. What I would love to have is सुकून से आप कल बैठें, कल संडे, सुबह उठें, सुकून से सारी चीज़ें ब्लॉक हों, हेडफोन्स लगाएं, 1 से 2 घंटे अपना विजन सेट कर लें फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years। आई वुड लव टू सी कि कोई भी स्क्रीनशॉट लेकर इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर दे, DM कर दे। आई वुड लव टू सी दैट।
सुकून से अपना विजन सेट करें, उसे रिकॉर्ड करें, सुबह दोपहर शाम तो खैर नहीं, सुबह और रात को एटलीस्ट उस चीज़ को देखें, और फिर एक हफ्ता आप ले लें इस शीट को डेवलप करने में, एंड देन मेक श्योर कि अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। हर महीने मुझे टैग कर दें, ईमेल कर दें, डीएम भेज दें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें कि ये मेरा जनवरी है, उसमें मैं देख लूंगा। जिसके 3 ग्रीन हैं उसका भी मुझे पता चल जाएगा, जिसके 15 में से 12 ग्रीन है उसका भी मुझे पता चल जाएगा। अल्टीमेटली यू गाइस आर द मास्टर ऑफ योर ओन शिप्स, इट्स ऑन यू, ऑल इज ऑन यू, दैट्स इट। तो खैर, yep, that's been said. Let's sign off. If you guys have any other questions, let me know. अच्छा, व्हाट्सएप का ग्रुप मेरा कोई इस तरह का नहीं है, कोई पब्लिक ग्रुप नहीं है, इट्स अ प्राइवेट क्लोज ग्रुप, और वो भी क्लोज ही हो चुका है ऑलमोस्ट। मगर अगर आने वाले वक्तों में इफ आई लॉन्च एनी प्राइवेट कम्युनिटी आई विल लेट यू गाइस नो, और हम या तो व्हाट्सएप पे कर लेते हैं, या फिर डिस्कॉर्ड पे कर लेते हैं, या फिर किसी और चैनल पे कर लेते हैं। मगर मोस्ट ऑफ यू जिनके भी चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू आर ईदर कनेक्टेड विद मी ऑन बहुत पुराने 2-3 साल वाले पुराने व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर डिस्कॉर्ड में कनेक्टेड हैं, या फिर पॉडिया में कनेक्टेड हैं। तो यू गाइस आर कनेक्टेड, मोस्ट ऑफ यू गाइस आर कनेक्टेड। अगर कोई नहीं है तो सिंपली सेंड मी डीएम और एनीथिंग लाइक दैट। एनी गाइडेंस ऑन ये टॉपिक नहीं है सीए फाइनल एग्जाम्स को क्लियर करने का, मुझे भी 10 साल हो गए क्लियर हुए हुए, तो अब तो मुझे भी नहीं पता किस तरह क्लियर होगा। सिंपल है कि पढ़ लें। कैन वी स्टिल परचेज योर HIC कोर्स? अभी ना, यू गाइस कैन परचेज, मैं उसे एक्टिवली प्रमोट नहीं कर रहा क्योंकि मैं उस पर देख रहा हूँ कि उस पर क्या वैल्यू एड ऑन हो सकती है। You guys can do, मगर I'm inactive on that particular course. Reason being, मैं इसलिए promote नहीं कर रहा क्योंकि उस course में एक promise ये है कि we would be having monthly calls, and right now I'm not having monthly calls, so मैं कोई false promise करके किसी को course नहीं बेचना चाह रहा। Cold calling देखें, cold calling डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ऑडियंस के साथ काम करें। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ कोल्ड कॉलिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो वॉल्यूम का गेम है और स्किल का भी गेम है। वॉल्यूम का गेम है। अगर कुछ कोल्ड कॉलर्स की वो मैं देखता हूँ, बड़ा फिट बंदा है, वो दुबई में बैठा हुआ है मोटा सा, तो वो कोल्ड कॉल्स करता है, मगर वो सिर्फ अपनी लाइक अच्छी कोल्ड कॉल्स दिखाता है। आपको आइडिया नहीं है कि कोल्ड कॉल्स में होता क्या है लोगों के साथ, साथ सेल्स। या ही इज अ गुड गाय। विल यू शेयर दी शीट्स? यस आई विल in the next 48 hours. Can you check my work live here? I've done the same. कौन सा live work? What exactly do you do? Which agency are you running? Which services are you providing? So I have one fundraising firm. It's not an agency, it's a firm. And we work with businesses who are raising capital. So we work with them on their pitch decks, documentation, and then also on the investor outreach, and ultimately help them raise capital. So that is what we do. 6 मंथ्स भी आप गोल कर सकते हैं, या डेफिनेटली। सो 6 मंथ्स का आप गोल सेट कर लें और 6 मंथ्स पे ही आप काम करें। अल्टीमेटली जो आपका डैशबोर्ड है वो तो साल का है, आप उसे 6 मंथ्स तक यूटिलाइज करना है, आप उसे 6 मंथ्स तक यूटिलाइज करें। राइट नाउ आई एम डूइंग बोनस। क्या है बोनस? मैं आपको ना ईमेल्स पे ही भेज दूंगा यार। मुझे वो काफ़ी लोगों ने कहा कि हम लाइव कॉल्स पे नहीं आ सकते, तो प्लीज़ हमें बोनस दे दें। ये वो कुछ स्क्रिप्ट्स हैं फॉर लिंक्डइन एंड फॉर ईमेल आउटरीच, तो आई वुड बी शेयरिंग दोस्त विथ यू। Right now I'm freelancing. Do you create LLC to scale it? कर सकते हैं। I mean, just a reminder, she'll say something in particular. Yeah, वो मैंने आपको बता दिया है। Me for the life work. उस्मान सिद्दीकी। अच्छा, मैं आपको करता हूँ। What's the bonus thing? Cold calling, fine. Wanna ask if अच्छा, अमाज, इफ यू आर 150 वाले पर आप हैं, तो फाइवर एंड अपवर्क इज द ओनली प्रोसेस। लिंक्डइन पे भी आप जा सकते हो, और लिंक्डइन की ब्रांडिंग वो फिर एक हम टॉपिक से हट जाएंगे। पहले आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल ब्रांड करनी पड़ेगी, एंड यू कैन योर सेल्फ सेंड 20-25 कनेक्शंस पर डे एज वेल।
एक कनेक्शन मैन्युअली सेंड करने में ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, और अगर मैं 20 बंदों को भेज रहा हूँ तो वो अच्छा खासा 200 मिनट्स या फिर 3 से 4 घंटे का टाइम हो जाता है। तो दैट इज़ वाई यू यूज़ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन आप क्यों यूज़ करते हैं? आप वो काम मैन्युअली भी भेज सकते हैं, आप ईमेल्स मैन्युअली भी भेज सकते हैं, मगर 18,000 बंदों को ईमेल्स भेजना वो एक एफर्ट है। इसी तरह 700 बंदों को रीच आउट करना वो एक एफर्ट है, राइट? तो ये रेहान टू कौन है भाई? अच्छा, anyone who wants to unmute themselves and ask questions, let me know. Usman Siddiqui, एक second. How do I unmute? You have to first. अच्छा, मेरे पास ना टीम नहीं है, तो आप मुझे खुद ही करना पड़ेगा हर किसी का। 1 second, Usman. Yeah, now you can. अस्सलाम वालेकुम सर। जी उस्मान। हेलो। Yep. हेलो। Yes, yes, कैन यू आवाज हियर आ मी? रही। Yep. ओके। जो आपने आज बताया ये तमाम तो चीज़ें मैं कर चुका हूँ एक हफ्ता पहले ही। सो कैन आई शेयर माय स्क्रीन? Sure, sure. आई सेंड यू द रिक्वेस्ट टू शेयर द स्क्रीन। अच्छा, ये मैं आपका HIC का स्टूडेंट भी रहा हूँ। सो बेसिकली मैंने ऑफर क्रिएशन पे काम किया है। हम्म। बेसिकली मैं जो बेचता हूँ वो SEO सर्विसेज, Okay. मेरी एजेंसी है। Yep. सो उसमें मैंने ये टारगेट्स को रखा, मतलब मेरे जो है ना यहाँ पर जो लीड मैग्नेट्स हैं वो ये चार हैं। ठीक है। बेसिकली फेसबुक, लिंक्डइन, कोल्ड ईमेलिंग और उसके बाद अपवर्ड प्रोफाइल। ठीक है। सो इसमें पे टारगेट रखा बिल्कुल छोटे से कि 5 लाख रुपए पर मंथ से स्टार्ट करते हैं। एवरेज टिकट प्रोडक्ट अगर मेरा 60,000 रुपये पे है, सही। सो वहाँ पर मेरा 9 क्लाइंट्स को क्लोज करना। Yep. उसके बाद अगर मैंने 20% का यहाँ पर क्लोजिंग रेट को एज्यूम किया है तो उस हम्म। हिसाब से पे मैंने बनाया। Yep. ठीक है। ठीक है। सो उस लिहाज से कोल्ड मेलिंग के लिए पे मेरे ये टारगेट्स हुए कि पर डे को मुझे 122 ईमेल्स भेजने पड़ेंगे पर डे। अब अगर मेरा ओपन रेट अभी पीछे 15% रहा है तो फिर हम्म। पर मंथ मुझे ईमेल्स को भेजना पड़ेगा। तो हम्म। ये तमाम तो चीज़ें इस तरह से सेट की हैं। बेसिकली मैं इस वक्त ये कर रहा था कि मेरे जो 2 टीम मेंबर्स हैं उनको मैंने अपॉइंटमेंट सेटिंग पे लगाया, हम्म। और उसके बाद मैंने जो है उसको क्लोजिंग पे मतलब सेल्स कॉल उसको खुद रखा। हम्म। सो इसमें फिर हमारे पास ये निकल के आया, या अभी बात ठीक कर रहे थे कि जितना Yep. हम टारगेटेड चलेंगे, क्वांटिटेटिव चलेंगे, तो वो तमाम तो चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं। Yep. True. तो True. अब हमें ये पता चल गया है कि हमें पर मंथ में किस मीडियम पे किस किस तरीके से काम करना है, किस क्वांटिटी में काम करना है। Yep. और उसी हवाले से हमें ये पता चल गया कि हमें 9 क्लाइंट्स को क्लोज करने के लिए हमें अपॉइंटमेंट्स कितनी चाहिए होंगी। हम्म। अब उस Yep. अपॉइंटमेंट्स में फिर क्लोजिंग कितनी चाहिए। अब हमें फॉर एग्जांपल 9 क्लाइंट्स क्लोज करने हैं तो हमें 30 अपॉइंटमेंट चाहिए, हम्म। और 30 में से फिर हमारे 9 क्लोज होंगे। ट्रू। हाँ, सही है, सो बिल्कुल सही है। मगर अब आप इसी चीज़ को लेके जो मैंने टेम्पलेट, अगर आप उसे चाहते हैं, क्योंकि मैंने ये आप अगर HIC के दैट इज़ वाई यू आर डूइंग दिस। मगर व्हाट आई वाज आल्सो एक्सपीरियंसिंग माई सेल्फ, क्या यार, मुझे पता है मैंने डेली बेसिस पे क्या करना है, मगर मैं उस चीज़ को ना विजुअली देख नहीं पा रहा था। तो जब तक आप विजुअली देखते नहीं हो तब तक आप उस चीज़ पे आपको समझ नहीं आता कि यार, यानी समझ तो होता है मगर आप फिर भी ना उस पे एक्शन उस हिसाब से लेते नहीं हो। वर्सेस क्या आप एक चीज़ विजुअली भी देख रहे हो, उसे आप डेली बेसिस पे भी देखो, आप फिर मंथली उस चीज़ का रिव्यू करो, क्वार्टरली रिव्यू करो कि यार क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, किस तरीके से मैं और एक्शंस ले सकता हूँ, किस तरीके से मैं बेटर एक्शंस ले सकता हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इफ़ यू गाइज आर डूइंग SEO एंड इफ़ यू गाइज आर गुड, तो रीच आउट टू मी एज वेल। मुझे भी SEO सर्विसेज रिक्वायर्ड है। ओके श्योर। ईमेल करूँ आपको? हाँ, ईमेल कर। ओके, ठीक है। थैंक यू। चलें। एनीवन एल्स?
Hamza, you can unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम जमाल भाई। वालेकुम सलाम। मैं इधर कनाडा से ही हूँ। तो मैं आपको तब से फॉलो कर रहा हूँ जब मैं पाकिस्तान में होता था। एंड देन वंस आई सॉ कि आप कनाडा आ गए हैं और कुछ ही किलोमीटर के फासले पे हैं, देन आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज यहाँ कनाडा के अंदर ना मैंने देखा है कि बहुत से लोग हैं जिनका माइंडसेट बड़ा डिफरेंट है। दे जस्ट फॉलो द लूप होल और द रैट रेस, दे जस्ट केप्ट रनिंग अर्निंग आवर्स एंड आवर्स एंड तो उनसे थोड़ा सा ना मेरा माइंड फैट अप सा हुआ हुआ था बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग एनीवन टू रिलेट विद। लेकिन आपके आने के बाद आई जस्ट गेट सम काइंड ऑफ मोटिवेशन। मुझे यहाँ 2.5 साल हो गए हैं कनाडा के अंदर, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग गुड। और गुड। इवेंचुअली मेरा भी प्लान है कि मैं भी कुछ अपना बिजनेस ही स्केल करूंगा। बट स्टिल मैं आपकी स्टोरीज देखता रहता हूँ रैंडमली। लास्ट स्टोरी जब मैंने ओपन की एंड देन आई सॉ योर कैलेंडर एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली मेकिंग लाइक माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा था पिछले 2 सालों से ना। बट दिस टाइम आई वाज लाइक सो फेड अप कि मैंने कहा मैंने बनानी नहीं है। एंड देन होता ना कि एक आपके पर्पस के लिए हर चीज आपको दिखाई जाती है। देन Yeah. सडनली आई सॉ योर स्टोरी एंड आई वाज लाइक I'm gonna make it, I'm gonna do that। तो उसके बाद मैं कॉन्स्टेंटली स्पेशली आपकी इंस्टाग्राम आईडी खोलता था और देखता था कब लिंक आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, कब आएगा। एंड आई वाज फॉर्चुनेट, एक दिन मिल गया और आई एम हियर। प्रोबेबली हमारी ये पहली मुलाकात है, बट इट विल नॉट बी द लास्ट वन। हम इंशाल्लाह कभी डिनर पे, अगर आपके पास थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल मैंने देखा है काफी ज्यादा आपका टाइम हुआ, तो जरूर इकट्ठे खाना खाएंगे। तो Where do you मुझे live, Hamza? कहाँ पर I'm, रहायश है? I'm, अभी मैं करंटली ब्रैम्पटन में रह रहा हूँ, बट आई वर्क इन मिसिसागा। अच्छा, सही सही। अब I'm here in Milton, तो या मैंने uh, देखा था आपकी इंशाल्लाह स्टोरीज में। इंशाल्लाह इंश मौका मौका मिला तो जरूर मिलेंगे। So what exactly do जरूर। you do? So actually, I'm a student right now. I'm going to be graduating in April. All तो right. मैं बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वो हो जाएगी मेरी इधर अप्रैल के अंदर। एंड देन मैं फुल टाइम भी काम करता रहा हूँ इधर। एक मल्टीनेशनल कंपनी है ट्रक पार्ट्स की, उधर एज अ सेल्स करता रहा हूँ ऑटोमोटिव पार्ट स्पेशलिस्ट की। All तो right. यूएस बेस्ड कंपनी है। तो सही सही। अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लाइक 6 फिगर तक अर्न हो जाता था, फीसेस वगैरह निकल गई सारी। All और ये था कि लाइक सारे आप लगा लो कि गोरे थे, तो उनसे थोड़ा सा काफी कुछ सीखने को भी मिला बिकॉज right. उनकी मेंटालिटी चीजों को लेके काफी डिफरेंट है। अगर हम बात करें हमारे लोग यहाँ जैसे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई फील ब्लेस्ड माई सेल्फ के अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी और ऐसे लोगों के साथ सराउंड रखा जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिलता है। Good. तो Good. जजाकल्ला। चलें जी, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर थैंक यू। मुलाकात होती है। All right. जरूर जरूर Perfect. Best of इंशाल्लाह। luck. अम्माज। अम्माज, वेरी यूनिक नेम, मैंने पहली दफा सुना है। वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अम्माज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल गुड। जमाल भाई, एक्चुअली मैं फास्ट न्यूज़ लाहौर से बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ और मेरा करंटली 6 सेमेस्टर चल रहा है। तो बेसिकली मेरे घर वाले कहते हैं कि यू शुड मूव अब्रॉड एज योर ब्रदर। मेरा भाई जर्मनी में होता है स्टडी वीज़ा पे। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन सर्विसेज में अपने आप को अपस्केल करूँ, इसी वजह से मैंने अपने लिंक्डइन को अपवर्क को ऑप्टिमाइज कर लिया। और लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करते हुए मैंने काफ़ी मैनुअल रीच आउट्स किए हैं पीपल को, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स आया, नॉट मच मेजर। तो मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि अभी फाइवर और अपवर्क पे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और फ्रीलांसिंग के लिए। लेकिन मैं बिड्स भी खर्च कर रहा हूँ, कनेक्ट्स मेरे पास लिमिटेड है ऑलमोस्ट 300, लेकिन एज सच कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि मैं आपका HIC कोर्स परचेज कर लूँ। लेकिन आई थॉट वो मे बी अपडेटेड ना हो, इस वजह से आपसे 1 to 1 अगर मैं पूछ लूँ, या या व्हाट वुड यू सजेस्ट मी कि हम मेरा सबसे अच्छा रोड मैप क्या हो सकता है? यार, रोड मैप आपका ये होगा कि अभी फिलहाल तो आप HIC को परचेज ना करें। ये मेरे ख्याल से कोई पहला ही बंदा आपने सुना होगा जो अपने ही कोर्स को कह रहा है कि ना परचेज करो। वो इस वजह से क्योंकि उसमें ना अपवर्क कवर्ड नहीं है। तो अपवर्क का मैं किसी ज़माने में था टॉप रेटेड, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि आई यूज टू हेट लाइक सेंडिंग प्रपोजल्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो आप ये कर सकते हैं कि
सबसे पहले तो देखें अपवर्क पे मैं लिटरली किसी जेन्युइन बंदे को नहीं जानता जो कि अपवर्क पे सही तरीके से चीज़ें सिखा रहा हो। दो तीन बंदों को मैंने उनका कंटेंट देखा है, आई आई डोंट रियली लाइक देम। सिंपल इनफ ये है कि अपवर्क पे सिर्फ एक एक बंदा है, वो उसका नाम मेरे जहन से निकल गया है। वो मेरी नीश का ही है, एवंस नाम है, एवंस फिशर नाम है, समथिंग अलोंग दोस लाइन, उसका यूट्यूब का चैनल है। तो पहले आप सीखें यार अपवर्क पे प्रपोजल राइटिंग और उस चीज़ को मैं किस तरह बेहतर कर सकता हूँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ यही है कि यार आप अपवर्क पे एक और जो रिक्वायरमेंट आपको होना पड़ता है वो ये है कि यू हैव टू बी ऑनलाइन मोस्ट ऑफ द टाइम, यूएस बेस्ड टाइम्स पे। और दैट इज़ वाई दैट इज़ अगेन वन बिग इशू दैट आई हैव विद अपवर्क के यार रात के 2 बजे आपको 3 बजे एक्टिव होके प्रपोजल भेजना पड़ता है ताकि आप टॉप ऑफ द प्रोफाइल्स में आ जाए, विद इन द फर्स्ट 5 फर्स्ट 10 प्रोफाइल्स में आ जाए। तो ये इशूज़ हैं, मगर सबसे पहले वही मैंने आपसे बात की कि अगर आप अपने आप को अभी फिलहाल देखें कि आपको वॉल्यूम इंप्रूव करनी है या फिर आपको स्किल इंप्रूव करना है, राइट। आउटरीच का वॉल्यूम इंप्रूव करना है तो उस पर काम करें। अगर आप मैक्स लेवल पर हैं कि यार 300 प्रपोजल्स ही मैं भेज सकता हूँ या फिर एक्स नंबर अमाउंट पे आउटरीच कर सकता हूँ, फिर आप स्किल पे काम करें। स्किल का क्या मतलब है कि अपवर्क की प्रपोजल्स की क्वालिटी किस तरह बेहतर हो सकती है। इसी तरह अगर आप लिंक्डइन आउटरीच पे कर रहे हैं तो पहला मैसेज, कनेक्शन मैसेज आपका किस तरह बेहतर हो सकता है। हाउ कैन यू टेक दैट कनेक्शन इन टू अ कन्वर्सेशन एंड कन्वर्ट दैट कन्वर्सेशन इन टू अ कॉल, दैट इज अ स्किल, राइट। तो अब तो चीज़ें यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। मेरा कोर्स आएगा, थोड़ा सा अपडेट हो रहा है क्योंकि चीज़ें चेंज होंगी। लास्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड किया था 2023 में किया था, तो वो जब इंशाल्लाह अपडेट होगा Q2 Q3 में ही होगा, तब मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। मगर अभी फ़िलहाल ऑल दो उसमें ये लिंक्डइन वगैरह और सारी चीज़ें हैं लिंक्डइन की, मगर इन द लास्ट 2 years आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय टेस्टिंग थिंग्स। तो वो चीज़ जब मैं ऐड कर लूँगा तो फिर आप उस वक्त कर कर लेना। मगर अभी फ़िलहाल फ्री चैनल्स और यूट्यूब चैनल से आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो। वन मोर क्वेश्चन कि लिंक्डइन पे हम जब रीच आउट करते हैं पीपल को एज अ डेवलपर, मंस्टैक डेवलपर और आईटी रिलेटेड सर्विसेज, हमें बाहर किन लोगों को टारगेट करना चाहिए? हाँ, इसके लिए देखें फिर से हम टॉपिक से सेगवे हो रहे हैं, मगर चले मैं आपको आंसर दे देता हूँ। फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन योर आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल, कि आपका आइडियल क्लाइंट कौन है, राइट। अगर कोई भी डेवलपर है तो हो सकता है लेट्स से अगर आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, आप डेवलप कर रहे हैं। वेबसाइट में खुद डेवलप करता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसे पीपल हैं जो कि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, मेरे दोस्त वगैरह एक्सेट्रा। चलें अभी हम सिर्फ खुद मैं वेबसाइट वेबसाइट करते हैं। करता हूँ। अब अगर आप वेबसाइट डेवलप करते हैं तो आपने फिर सबसे पहले अपनी नीश आइडेंटिफाई करनी है कि आप कोचेस के लिए वेबसाइट डेवलप करते हैं, स्टार्टअप्स के लिए करते हैं, कंसल्टेंट्स के लिए करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। अब जब वेबसाइट डेवलप करते हैं फिर बात आ जाती है, जब आपने आइडियल क्लाइंट एवेटार डिफाइन कर लिया, फिर आपका प्रॉमिस है। प्रॉमिस क्या होगा, जिस पे हम ऑफर पे बात करते हैं, इस पे आप अगर किसी ने वो बुक नहीं पढ़ी तो $100 million ऑफर्स पढ़ लें एलेक्स सरमोजी की, आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। सो एवरीवन या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल कैन से मैं वेबसाइट डिजाइनर हूँ या फिर मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ, राइट। मगर अगर आपकी बात एक क्लाइंट से हो रही है और आप उसे कहते हैं कि आई एम अ वेबसाइट डेवलपर एंड आई कैन डेवलप वेबसाइट फॉर यू, और मेरी बात भी उसी क्लाइंट से हो रही है और मैं उससे कहता हूँ कि आई एम अ वेबसाइट डेवलपर फॉर कंसल्टेंट्स एंड आई हेल्प देम optimize their conversion ratio on website by at least 20%, or they get their money back in the next 60 days, राइट। तो अब जो क्लाइंट है वो एसोसिएट कर रहा है आपकी सर्विस को विद द रिजल्ट, कि यार ये वेबसाइट डेवलपर मेरी वेबसाइट डेवलप करेगा जिसकी बेसिस पे मुझे इंक्रीज्ड लीड फ्लो आएगा या फिर कन्वर्जन होंगी, तो अल्टीमेटली वो मेरी तरफ जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना है कि आपकी आइडियल क्लाइंट क्या है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, डिफिकल्टीज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और फिर क्या कहते हैं आपकी ऑफर क्या बन रही है। चले मैं बोनस आप सबको ये भी दे दूंगा, मैं आपको अपना ऑफर डॉक्यूमेंट भी सबको ईमेल्स कर दूंगा जो भी इस कॉल पर आया हुआ है, तो आप वो भी देख लेना, आपको वहां से भी समझ आ जाएगा। बट इफ यू गाइस कैन गो थ्रू द एलेक्स सरमोजी वाली चीज प्लस यूज चैट जीपीटी टू डिफाइन योर ऑफर, तो यू गाइस आर वेल सॉर्टेड आउट।
ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बस अब बाकियों के क्वेश्चंस ले लेता हूँ। राबिया, इफ यू वांट टू, इफ यू आर स्टिल देयर। यप। First of all, thank you so much, Jamal. And yeah, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं फाइवर फ्रीलांसर हूँ। इट्स बीन इयर्स। लाइक फाइवर ही मेरा ओनली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं अर्न करूँ। अर्निंग अ वेरी 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 गुड मनी, राइट। एंड ऑल्सो आई एम वर्किंग ऑन M&A फर्म। आपको ही पता है, वी हैव सम परसेंटेज व्हेन द डील क्लोज्ड। तो वो भी एक है कि मनी फ्लो बहुत अच्छा है। तो उसमें यही हो रहा था कि पिछले साल तो बस जो आ रहा है बस लग रहा है, आ रहा है, लग रहा है। बट नाउ आई डिसाइडेड टू उस मनी को, जैसे आपने बात की कि उसको आपने मजीद रेवेन्यू की जो स्ट्रीम्स है ना उन पे इन्वेस्ट करना है और उससे मजीद मनी जनरेट करना है। सो मैं आपकी स्टोरीज देख रही थी, आप कैलेंडर बीच में बना रहे थे। आई रियली वांटेड टू हैव दैट एज वेल। लेकिन आज आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज आपने वो सब बता दिया और आप हमें लिंक भी दे देंगे। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड जब आपने बात की विजन की, क्या आपने, हाँ, कि आप अपने विजन को जो है ना लिख लें कहीं और रोज देखें। आई हैव अ वेरी गुड एग्जांपल। इट्स बीन लाइक 1.5 साल 2 साल हो गए इसको। ये मेरी नोटबुक है एंड इस पे आई जस्ट राइट व्हाई यू स्टार्ट। और ये या। मेरे टेबल पे पड़ी है। मैं जब भी हम्म। ऑफिस में आती हूँ तो ये देखी, मतलब होता है कभी कभार आप सुस्त हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं। तो मेरी जब इस पे नजर पड़ती है ना, मतलब ओके राबिया, लेट्स गेट बैक टू वर्क एंड व्हाई यू स्टार्ट। यप। तो वो आप वाली एग्जांपल ना, रोज अपने विजन को सुने। तो मैंने कहा या। मैं ये भी शेयर करूँ। इट्स नो प्रोडक्टिव और गुड थिंग। आप ये भी कर सकते हैं अपने टेबल पे। मैं तो जब भी इसको देखती हूँ मैं बिल्कुल सीधी हो जाती हूँ। यप। Rabia, why you started? Why you are being so lazy? Let's go back to work. So thank you दैट्स so गुड। much. I just want to, yeah, thank you No, really honestly, appreciate and that. Really appreciate that. Wonderful knowing thank you. you, All the best, Rabia. thank you. Okay. Anyone else with their questions? Solution Visions. Solution Visions आपका असल नाम क्या है? आप असल आईडी से आए? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जमाल सलाम। भाई, थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट एक मीटिंग के लिए। और दूसरा ये क्वेश्चन मेरा ये है, आपको फॉलो कर रहा हूँ फॉर द लास्ट 1.5 ईयर से, और काफ़ी चीज़ें सीखी फाइवर और अपवर्क से हट के। क्योंकि अभी जो आपने बात की ना, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर स्टक ऑन फाइवर और अपवर्क। सेम सिचुएशन मैं, बल्कि और मेरे साथ जितने भी बाकी भी होंगे उनकी भी सेम सिचुएशन होगी कि उनका जो रेवेन्यू है वो फाइवर पे और अपवर्क पे बिल्कुल स्ट्रक हो जाता है। कभी एक मंथ में क्लाइंट ऊपर है, कभी नीचे है। तो माय क्वेश्चन इज, अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स और गूगल एड्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मैं अभी स्टार्ट करना चाहता हूँ टू मूव आउटबाउंड क्लाइंट्स जो दूसरे सोर्सेज से, चैनल्स के बारे में जैसे आपने बात की है, हम्म। ईमेल मार्केटिंग और लिंक्डइन और दूसरी चीज़ें। हम्म। सो आप काइंडली मुझे सजेस्ट कर सकते हैं इन द स्टार्ट, इन द बिगनिंग, ऑटोमेशन से हट के क्या मैनुअली मैं ये कर सकता हूँ? वे क्या कहते हैं, मैनुअली कैसे ईमेल मार्केटिंग और लिंक्डइन और उस पे एज ए डिजिटल मार्केटर फेसबुक एड्स और गूगल एड्स? या। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, अगर आप मैन्युअली रीच आउट कर रहे हैं तो मैनुअल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप वो चीज़ करें जो कि मैसिवली स्केल हो सके। राइट। अब ईमेल अगर आप आउटरीच कर रहे हैं तो वो आपको हर बंदे को ईमेल लिखनी पड़ेगी। हर बंदे, अगर आपने टेम्पलेट भी, एटलीस्ट नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर मेल मर्ज अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसमें एफर्ट लग जाएगी। तो ऑर्गेनिक तरीके से मैस आउटरीच अगर आप करना है तो यूज़ फेसबुक ग्रुप्स या फिर लिंक्डइन ग्रुप्स। दोज आर वेरी वेरी पावरफुल। जो कि अच्छे क्वालिटी के ग्रुप्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप उसमें हैं, गूगल एड्स वगैरह में एक ग्रुप है, नथिंग हेल्थ बैक, NHB। It's a very powerful and it's a very strong community of like-minded individuals। और वहाँ पर आप पहले 10-15 दिन देखें कि यार अच्छा लोग कंटेंट किस तरह पोस्ट कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, किस तरह अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, एंड देन यू पोस्ट इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो आपकी एक पोस्ट 100-200 बंदा देख सकता है, वर्सेस के आप वही काम मैनुअली करें और 100-200 बंदों को रीच आउट करें। एक तो ये मैनुअली कर सकते हैं। दूसरा, लिंक्डइन पे जैसे यही कहा कि लिंक्डइन पे एक बंदे को रीच आउट करने के लिए तकरीबन आपके 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। आप प्रोफाइल पे जाते हो, देखते हो, अपना मैसेज ड्राफ्ट करते हो, सेंड करते हो। फिर कुछ टूल्स हैं, क्योंकि आपने कहा कि विदाउट ऑटोमेशंस, तो मैं किसी टूल्स का नाम नहीं लूंगा, मगर उसमें भी आप मैनुअली रीच आउट कर सकते हो। 10-15 लोगों को, 20 बंदों को आप रीच आउट कर सकते हो। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू कैन डू। इसी तरह ईमेल आउटरीच है। ईमेल आउटरीच में अगर आप मैनुअली कर रहे हो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है।
अगर आपको मेल मर्ज, अगर आपने कोई टूल यूज नहीं करना, तो आप एक काम ये कर सकते हैं, आउटलुक यूज करके मेल मर्ज का कॉन्सेप्ट सीख लें कि मेल मर्ज किस तरह होता है, और अपनी ईमेल ड्राफ्ट कर लें, और वो आपको आपको समझ आ जाएगी। जो भी मैं अभी अभी तो शायद हो सकता है सर से गुजर रही हो, तो वो आप आउटलुक से 10 15 20 लोगों को मेल मर्ज का कॉन्सेप्ट यूज करके आप रीच आउट कर सकते हैं। मगर जहां पर आपकी स्केल की बात आएगी, वहां पर आपको ये सिस्टम्स ऑटोमेशंस उस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मगर या यू गाइस कैन स्टार्ट विद मैनुअली रीचिंग आउट, यू गाइस कैन हैव फेसबुक ग्रुप्स और ऑल दैट्स। अब जो भी मैं चीज बताता हूँ ना, क्योंकि टाइम की कमी, आई नीड टू हॉप ऑफ इन द नेक्स्ट 8 मिनट एज वेल। ये कोई चीज आर्बिट्रेरी नहीं होती कि मैंने आपको कहा कि यार फेसबुक ग्रुप पे आपने पोस्ट किया तो आपने कहा कि यार फेसबुक ग्रुप पे मैं पोस्ट करता हूँ। नो, दिस इज वन पार्ट। अब फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करने के लिए आपकी फेसबुक की प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, राइट? आप क्या पोस्ट कर रहे हैं वो भी स्ट्रैटेजिकली थॉट आउट होना चाहिए। मगर ये कुछ 3 4 चीजें हैं जिसकी बेसिस पे आप मैनुअली चीजों को कर सकते हैं। ठीक है। एंड द वन लास्ट क्वेश्चन मुझे पता है थोड़ा सा टाइम रह गया, वो ये कि आई एम वर्किंग ऑन फेसबुक एड्स और गूगल एड्स, सो कैसे मैं अपने आप को मजीद डे बाय डे इम्प्रूव करूं, कैसे? और सेल्स जैसे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्स पिचिंग और ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग और ये और वो, तो इन सब चीज़ों में डे बाय डे हाउ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ प्रैक्टिसिंग और इसमें ये सब चीज़ें। यार प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, मगर आपको अगर बेसलाइन स्किल ही नहीं पता तो आप तो गलत ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट? सो द राइट प्रैक्टिस इज नीडेड। गो फॉर कोर्सेज प्रोग्राम्स अराउंड सेल्स। यूट्यूब पे देखें, सेल्स पे काफ़ी चीज़ें होती हैं। किताबें आप पढ़ सकते हैं सेल्स पे। जैसे फिर सेल्स पे एक स्ट्रेट लाइन सेलिंग है, फिर फ्लिप द स्क्रिप्ट है, और बहुत ज़्यादा किताबें हैं जो कि आप सेल्स पे पढ़ सकते हैं। आप देख लेना टॉप 10 सेल्स बुक्स, आपको आइडिया हो जाएगा। तो वो चीज़ें आप सारी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस इट्स ऑल अबाउट यू नो एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप, अगर आप चैट जीपीटी की आपने लिया हुआ अकाउंट है, तो आप चैट जीपीटी को वॉइस पे आप कर सकते हो। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि यार वॉइस पे आपसे कहो कि यार तुमने क्लाइंट बनना है, रोल प्ले करना है, और फिर आप उसे बेचें। और फिर आप देखेंगे उसकी तरफ से क्या आता है, फिर आप उसे कहेंगे कि अच्छा मुझे फीडबैक भी दो। तो वो फिर आपको फीडबैक भी देगा कि यार आपने ये इस तरह किया, इस तरह नहीं करना चाहिए था, या फिर इस तरह बोलना चाहिए था। तो इस तरीके से आप चीज़ें सीख भी सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आजकल के ज़माने में तो देर आर सो मेनी वेज दैट यू कैन प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स। ग्रेट, थैंक यू सो मच जमाल भाई, बहुत शुक्रिया। अली, आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, सो या लेट मी नो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ। मेरा मेरे पास आपका एक ड्राइव का कोर्स भी पड़ा था जिसके अंदर आपने कम्युनिकेशन और बाकी चीज़ों के ऊपर काफ़ी गाइड किया है। तो वो जब भी मैं किसी क्लाइंट को पिचिंग करने जाता हूँ या सीएस कॉल पे जाता हूँ तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो सबसे पहले तो थैंक यू आपको कहना था। सर एक थैंक यू एक सो मेरा मच। सवाल है कि अब जैसे लाइक अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की अगर सर्विसेज देता हूँ कि आपको पता है कि इसके अंदर मैं बेसिकली ईमेल मार्केटिंग और आउटरीच के ऊपर जाना चाह रहा हूँ। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं जैसे होम इम्प्रूवमेंट, हेल्थ एंड फिटनेस। तो हमें क्या एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री पकड़ के, लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस होम इम्प्रूवमेंट की कंपनीज को दूंगा, तो क्या हमें इसकी तरफ जाना चाहिए रदर देन जनरल के ऊपर जाना चाहिए कि मैं सभी बंदों को टारगेट कर रहा हूँ और सभी को ईमेल्स कोल्ड कॉलिंग या कर रहा हूँ? नहीं, नीश डाउन करें। रीजन बीन के अगर आप नीश डाउन नहीं करेंगे, यू वुड बी स्पीकिंग टू एवरी सिंगल पर्सन। तो वो फिर लीड्स भी आपकी उस हिसाब से मिक्स एंड मैच होंगी, आपका स्किल भी उस तरह से नहीं बनेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू टारगेट वन पर्टिकुलर नीश एंड यू स्टिक विद इट। Rehan, you can send voice message, text message, doesn't really matter, as long as what the message is वो important है। ठीक है। लेट्स डू वन क्विक थिंग, इफ यू गाइस कैन, ऑल्दो काफी ज्यादा लोग थे चले गए। स्विच ऑन योर कैमरा, मैं एक पिक्चर लेता हूँ सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की, एंड वी देन टेक इट ऑफ इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। इंशाल्लाह आप लोगों को रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगी। ऑलराइटी। ऑलरेडी थोड़ा सा और मैं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो आ गया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कितने ज्यादा लोग आएंगे।
Good to see you, Heather. Scenes out. चलें जी. Okay. Yep. All right. Thank you so much. Inshallah, once you see this sheet, it can literally change your life if you stick with it. It can literally change your life. I promise you. ठीक है? फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.